Okay, so Abhisha reading. Abhisha's current energies. Let's check out Abhisha's current energies, current relationship status. So stay positive and stay focused, guys. And this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. There was a wedding in the house. I was very busy. I was not able to do any readings, but I'm back. So be happy, guys. Okay, so Abhisha की reading हो रही है. Current energies क्या हैं देखते हैं. I got hurt in this finger, so there's this temporary arrangement that I made over here. So please bear with this and concentrate in the reading. So Abhisha's current energy. Four of Pentacles. I'm going to take all the cards and then do the explanation. Oh God. Eight of Pentacles. Knight of Pentacles. This is all about money. Okay. So yes. Money with a little honey. Okay. Three of Swords. कहानी में ट्विस्ट 1 2 3 4 5. अरे यहाँ तो कोई किसी को चीट कर रहा है. Somebody is hiding something from the other one. Okay, ये देखिए. So these are the cards. Okay, so what I get from these cards is that, so both of them, they are actually concentrating on their work. काम पे बहुत ज़्यादा focused है अभी. Okay, and work is very important for them. Yes, at the same time काम के साथ साथ दोनों को एक दूसरे के लिए जो भी फीलिंग्स और इमोशंस है वो है, दिख रहा है. पॉजिटिव अबाउट ईच अदर. यस, लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव है. ओके. एडिक्शन, यस, एडिक्शन इज ऑल्सो देर, बट एट द सेम टाइम देर इज डिसेप्शन वाला एनर्जी ऑल्सो. सो 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स. सो कोई बहुत ही स्नीकीली, बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही चुपके से जैसे कुछ कर रहा है जो सामने वाले को ना पता चले. इस किस्म से यानी शो ये ऐसा कर रहा है कि नो नो नो, आई एम ऑल लव फॉर यू. ओके, आई केयर फॉर यू, एंड इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, आई एम अपोलोजेटिक अबाउट यू. बट पीछे पीट के कुछ हो रहा है. ओके, एंड डिसेप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है. ओके, ये भी एनर्जी आई हुई है. तीनों खतरनाक एनर्जी हैं. ठीक है, अभी कई रीडर्स कुछ और बोलेंगे, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है. लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये सब होने के बाद भी, इफ़ दिस एनर्जी इज़ कमिंग एंड इफ़ दिस एनर्जी इज़ कमिंग, द फ्रेंडशिप इज़ देयर. ओके, बिकॉज दे वैल्यू देयर फ्रेंडशिप. दैट इज़ द रीज़न दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ कम. Page of Cups has come because no matter how much they hurt each other, but still they are like, they try to forgive each other. It's like, okay, because they value each other's presence into each other's life. यही मतलब हुआ इसका. लेकिन दुनिया अगर इनको ऐसा देखना चाहती तो दुनिया एक्चुअली, इट इज़ द दुनिया विच इज़ गेटिंग चीटेड, बिकॉज दुनिया फील्स दैट दे आर लाइक दिस. They have this feelings for each other, possessive about each other, लेकिन they have their own stories to tell. ये ऐसा दिख रहा है मुझे. Okay, and they may be trying to tell the दुनिया कि they're possessive about each other, they have this love feelings for each other. They're showing the dunya like this, but they have own stories to tell people, and that's not that good a story to tell. मतलब
उनके लिए ठीक है भाई, आप लोगों को डिसअपॉइंटिंग लगेगा वो सुन के, ठीक है। ये ऐसा वाला दिख रहा है यहाँ पे किस्सा। आगे देखते हैं क्या है। इस सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, या दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। वैसे रखें सारा देखिए कार्ड्स। I hope you are able to see the cards. So I'm clarifying the cards. 4 of Pentacles has been clarified by 8 of Wands. 8 of Pentacles has been clarified by King of Wands. Knight of Pentacles has been clarified by Ace of Wands. Okay, बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? Okay, Page of Cups has been clarified by Knight of Cups. 3 of Wands has been clarified by, again, see, can you just believe that guys? फिर तुम बोलते हो मैडम आप अभिषा की रीडिंग में हमेशा ऐसी ऐसी बातें क्यों कहते हो? देखो ना यार, चीटिंग का कार्ड है, मैं बता रही हूँ। दीज पीपल आर शोइंग यू दैट दे आर ग्रेट फ्रेंड्स। यस, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स। They are possessive about each other. Yes, they are possessive about each other, but the way you want to see them together, the way you want them to portray their relationship as, वो नहीं है इन दोनों के बीच में। ये मान लो वो चीट कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि दे आर रोमांटिक कपल्स और समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इसलिए ये कार्ड फिर से आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड्स फिर से। So the moment they'll see the other person, they'll put that other person under the bus. इसका मतलब समझ में आता है? ये अपने खुद के फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर इनको लग रहा है कि दुनिया इन दोनों को एज अ कपल देखना चाहती है तो वो आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ओके, लेकिन दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको बॉन्डिंग है, पर आप उनको एक सर्टन वे में देखना चाह रहे हैं। वो वैसे सर्टन वे में एक दूसरे के लिए फील नहीं करते या नहीं करना चाहते या बनना नहीं चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली आपको ही फूल कर रहे हैं। ये वो एनर्जी है। समझ में आई बात? तो दो वो अपनी रिलेशनशिप को रखते हैं जैसी भी हैं, दे आर हैप्पी। तुमको देखना उनको किसी सर्टन वे में नहीं दिखा सकते। वो बेसिकली आप ही लोग को फूल कर रहे हैं वो। ये देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, लास्ट कार्ड। तो यार इन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ सही है, पर लेकिन जिस तरीके से आप इनको देखना चाहते हैं उस तरीके से वैसा कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। इसीलिए ये कार्ड 2 बार आ गया है और वो भी इसको क्लैरिफाई किया था, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये अगर इन दोनों के बीच में कभी एक दूसरे को लेकर दे आर पॉजिटिव अबाउट ईच अदर, ठीक है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो बोथ ऑफ देम विल पुट ईच अदर अंडर द बस, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पूरी दुनिया को वैसा दिखा रहे हैं लेकिन खुद एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है। So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please to take away good care of yourselves and bye bye.